चलिए, तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बात करी थी कि एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था करने के लिए. क्वेश्चन में बोला गया था कि इफ देयर इज अ पॉइंट P 3,1 and a point Q 5,7, then you have to find the coordinates of a point which divide them in the ratio 2:1. I never told whether it will be internal or external, so you have to find both the points which will be dividing in the ratio 2:1 internally as well as externally. Okay. Now let's see how if we want to find the internal division, the ratio will be 2:1. If the ratio is 2:1, then how we can do that thing? We will apply the internal division formula. Okay, we will apply the internal division formula. So by applying internal division formula, it will be 2 into 5 plus 1 into 3 whole divided by 2 plus 1. 2 into 7 plus 1 into 1 divided by 2 plus 1. This is internal division. And as far as the external division is concerned, 2 into 5 minus 1 into 3 upon 2 minus 1. 2 into 7 minus 1 into 1 upon 2 minus 1. So 10 minus this will give you what? This will be equals to 10 13 by 3. This will give you 13 by 3, and this will give you 14 plus 1 15 by 3. That will give you 5. Okay. This will give you what? 10 minus 3 7. This will be equivalent to what? 7. 14 minus 1 13. So this will give you 13. So 7 comma 13. Okay. So these are the points. This is the internal division and this is the external division. Okay. Now if this point A and B divides P and Q in the same ratio internally and externally, then we give them a technical name which is called as, this technical name is called as harmonic conjugate. क्या कहते हैं हम इन्हें? हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स. तो what are the harmonic conjugates? Harmonic conjugates are two points which divides the two given point in the same ratio. One divides internally and other divides externally. Okay, that what is called as internal harmonic conjugates. Okay. अगर आप इसको ध्यान करो कि इसके में आपको कई सारे, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन लोगों का ये आता है, सर हार्मोनिक क्यों बोलते हैं, ज्योमेट्रिक क्यों नहीं बोलते? ठीक है, तो रीजन उसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज हार्मोनिक कॉन्जुगेट. Look, okay, the figure is something like this. There are 2 points P and Q. A and B both divide them in the ratio m:n. Okay, so now from this what we can say that PA is equals to m lambda and PB will be equals to n lambda. Okay, so this length will be m lambda and this length will be n lambda. So if I say this whole length was equals to L. Okay, if PQ is equals to L, you can say that from the diagram that m lambda plus n lambda जो होगा वो L के बराबर होगा. तो from that lambda will be equals to L upon m plus n, where lambda is a proportionality constant. Okay, so from this we are getting that PA is equals to ml upon m plus n. Okay, PQ is already equals to L. Okay, now let's talk about B. If let's say this proportionality constant is mu, then I can say that PB this will be equals to what? AQ. PB can be written as m mu and BQ can be written as n mu. Okay, so this length is m times mu and this length is n times mu. So what we can say that PQ, which is equals to L, can be written as m mu minus n mu. So from there we are getting the value of mu as L upon m minus n.
ओके, दिस इज L अपॉन m माइनस n, देयरफॉर PB length will be equals to ML upon m minus n. Okay, so PB is coming out to be ML upon m minus n. ये जो L था उसको हम लोग ML upon m ऐसे लिख देते हैं. Okay, now see these 3 points are dividing three sections. One is this, one is 3 segments. Okay, these 3 segments PA, PQ and PB are in HP. You can see 1 upon PA plus 1 upon PB, that is equals to m plus n upon ml plus m minus n upon ml. So that will give you twice of m upon ml, that will give you 2 upon L. That is nothing but 2 upon PQ. Therefore 1 upon PA plus 1 upon PB is equals to 2 upon PQ. Therefore I can say that PA, PQ and PB are in HP. इसी कारण से A और B को क्या बोला जाता है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोला जाता है. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज हार्मोनिक कॉन्जुगेट. So here is the question based on what we talked just now. Find the harmonic conjugates of the point R 5,1 with respect to the point P and Q. हमें इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है. तो सबसे पहली दिक्कत है कि हमें नहीं पता कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, दूसरा ये जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है. ठीक है, तो बेसिकली हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसमें इस तरह के जब हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना होता है तो व्हाट वी नेचुरली डू कि हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है ये 2,10 पॉइंट था, ये 6,-2 पॉइंट है, ये P था, ये Q था और ये पॉइंट है R 5,1. ठीक है, मान लेते हैं रेशियो इज लैम्डा इज टू 1. इफ द रेशियो इज लैम्डा इज टू 1 देन 6 lambda plus 2 upon lambda plus 1 and minus 2 lambda plus 10 upon lambda plus 1. This will be the coordinates of R as per the section formula, which are given as 5,1. If we equate this, 6 lambda plus 2 is equals to 5 lambda plus 5 and minus 2 lambda plus 10 should be equals to lambda plus 1. So from here you get 3 lambda equals to 9, hence lambda is equals to 3, and from here you directly get lambda equals to 6. As you are getting same value of lambda. ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी और यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी. अगर कभी ऐसा हो जाए तो समझिएगा कि इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है. तो इनफैक्ट यू कैन यूज दिस ट्रिक टू कैलकुलेट वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. ठीक है, कि आप लैम्डा स्टोन का रेशियो मान लो, दोनों जगह से लैम्डा की वैल्यू सेम आ रही है तो आप बोल सकते हो कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं. अदरवाइज अब क्या बोलोगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. तो दैट मीन्स आर डिवाइड्स देम इन द रेशियो 3:1. हमने इंटरनल का फॉर्मूला माना था, लैम्डा पॉजिटिव आया तो इंटरनल डिवीजन है. तो इस कारण से अब इसका जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा वो क्या करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा. ठीक है, तो s के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. बस सिंपल क्या करना है, लैम्डा की जगह जो आपका रेशो 3:1 आया उसे -3:1 मान लो. तो 6 into -3 plus 2 upon -3 plus 1 is -2 into -3 plus 10 upon -3 plus 1. इसे सोल्व कर दीजिए. तो -18 plus 2, -18 plus 2 is -16. ठीक है, अपॉन -2, ये s का कोऑर्डिनेट अब ये हो जाएगा कितना, 6 plus 10 16 अपॉन -2. तो दैट विल गिव यू +8 कॉमा -8. तो इस कारण से ये जो पॉइंट s है, s के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 8 कॉमा -8. ओके, तो दिस इज द पॉइंट विच डिवाइड देम एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:1. तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट विल बी 8 कॉमा -8. ठीक है, अब मान लीजिए अगर यहाँ पे ये एक्स्ट्रा डिवीजन आता तो लैम्डा नेगेटिव आता.
लैम्डा नेगेटिव आता तो आप क्या करते, लैम्डा को पॉजिटिव करके रख देते, दैट वे यू विल गेट द हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ओके, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के क्वेश्चन में क्या करना है, समझ में आया सबको? तो ये आप लोगों के लिए एक क्रिया, जैसे कि जो आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसमें एक ट्राइंगल एबीसी है, उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एपी और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर AQ, ठीक है। ये BC को सेम रेशो में डिवाइड करेगा। किस रेशो में? यहां पे रिजल्ट जो आता है वो आता है कि BP अपॉन PC इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC, दैट इज इक्वल्स टू द रेशो ऑफ AB इज टू AC। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशो ऑफ एडजेसेंट साइड। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड BC, ए का एंगल बाइसेक्टर BC को किस रेशो में डिवाइड करेगा? उसी रेशो में जो एडजेसेंट साइड का रेशो है, दैट इज AB इज टू AC के रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। AB इज टू AC के रेशो में डिवाइड करता है, नंबर एक तो ये हो गया, ठीक है। इंटरनली इन केस ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नली इन केस ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इंटरनली डिवाइड करता है और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये रिजल्ट याद रखना। और एक और रिजल्ट मैं आपको याद दिलाता हूँ जिसमें आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो। लेट्स से देयर आर टू सर्कल्स, देयर इज वन सर्कल, इसका सेंटर जो है वो C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस क्या है, R2 है, ठीक है। दोनों के लिए ये वाला एंगल थीटा सेम रहेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं बोल देता हूँ A और ये वाला पॉइंट मैं बोल देता हूँ B। ये वाला जो पॉइंट था वो P था और ये वाला पॉइंट क्या था, Q था। नाउ हियर यू कैन सी दैट ट्राइंगल C1AP इज सिमिलर टू ट्राइंगल C2BP है कि दोनों में क्या, ये एंगल राइट ही है, ये एंगल तो कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो as per similarity what I can say that C1A upon C2B ratio of the altitude will be equals to the ratio of hypotenuse। तो hypotenuse कितना हो जाएगा, C1P upon C2P। मतलब P C1 C2 को किस रेशो में डिवाइड करा, बेसिकली C1A क्या है, R1, C2B क्या है, R2। दैट मीन्स P डिवाइड्स C1 C2 इन द रेशो ऑफ व्हाट, R1 is to R2। लेकिन कैसे कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली, ठीक है। जबकि यही चीज यहां देखो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम लोग बोल देते हैं लेट्स से R और ये वाला पॉइंट हम लोग बोल देते हैं S, ठीक है। तो देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये और ये सेम है, तो यहां भी बोल सकते हैं कि ट्राइंगल C1RQ and triangle C2SQ are similar। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो C1Q upon C2Q will be equals to C1R upon C2S। सिमिलर ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल। तो C1R खुद कौन है, R1, C2R क्या हो जाएगा, R2, ठीक है, C2S। तो इसका मतलब C1Q is to C2Q is also R1 is to R2। मतलब Q divides centers in the ratio R1 is to R2। P also divides the centers in the ratio of R1 is to R2, but this divides externally and this divides internally। Hence P and Q are harmonic conjugates। यहाँ पे P और Q harmonic conjugates हैं, तो इन दोनों इस केस में भी P and Q are harmonic conjugates, ठीक है। और यहां भी P and Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। समझ में आया सबको ये, ठीक है, ओके। तो ये तो बात हो गई कि इसकी हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स की बात आ गई। तो इसके बाद आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अभी हम छोटी कली बातें कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे भी आएंगे। क्वेश्चंस में के लिए फिर कुछ डाटा हमें और देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चीज जो हम लोग को देखना है
ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल में ध्यान करिए कि आप लोगों ने क्या करा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल में तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की, देखो ये जो फिगर आपका बना हुआ है ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम, ये वाला ट्रेपेजियम, ठीक है, ये वाला ट्रेपेजियम का एरिया प्लस ये वाले ट्रेपेजियम का एरिया, और उसमें से माइनस करना है कौन सा, ये वाले ट्रेपेजियम का एरिया, ये माइनस करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज सम ऑफ हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो ये हमने उसके हिसाब से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख दिया, 10th क्लास में सबने करा है। इससे आपका फॉर्मूला 1/2 कितना आ जाता है। अब देखिए कि इसे पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो पूरा फॉर्मूला से कई लोगों को याद होगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, ये x1y2 प्लस x2y3 प्लस x3y1 माइनस, फिर हो जाएगा y1x2 माइनस y2x3 माइनस y3x1। ये याद है, ये फॉर्मूला होता था। एरिया ऑफ ट्राइंगल के और फॉर्मूले, ह्यूमन्स फॉर्मूला आता था। ह्यूमन्स फॉर्मूले में क्या होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, where s is what, सेमी पेरीमीटर, a प्लस b प्लस c बाई 2। और कौन से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आता था, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है, ये आता था। अच्छा, इसके अलावा आप और बोल सकते हो कि 1/2 AB इंटू AC इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। AB और AC के बीच का एंगल कौन होगा, B। ये देखो, मतलब किन्हीं दो साइड का प्रोडक्ट करिए, ठीक है। अगला साइड हो जाएगा आपका लेट से CA इंटू CB, तो CA और CB के बीच का एंगल कौन होगा, C, तो साइन C, ठीक है। या फिर आप इसे 1/2 आप इसे लिख दो BA इंटू BC इंटू साइन AA, यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये आएगा A, ठीक है, और यहाँ पे आएगा साइन B। ये एक और एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या, जब साइड्स पता हो, बीच का एंगल पता हो, लेकिन कोऑर्डिनेट्स पता है तो ये, तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो एरिया निकालने का एक तरीका और है। मतलब यही चीज अगर आप याद नहीं रख, कई लोगों को याद रखने में दिक्कत होती होगी, तो उसके लिए एक तरीका क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ कि फाइंड मी द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय 2,1, 3,4 एंड 5,2, इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालें, बड़ा सिंपल सा केस है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं इसको। अब मैं देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप किसी एक पॉइंट से लिखना चाहिए 2, 1, 3, 4, 5, 2, इसे कहते हैं स्टेप मेथड। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो आपको सिंपल करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इस किसी भी एक कोऑर्डिनेट से लिखना शुरू करना है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और जहां से स्टार्ट करा वहीं पे खत्म करना है x1 y1। तो 2,1, 3,4, 5,2 और अगेन 2,1, ऐसे कर दिया। अब देखिए कि यहाँ पे ये एक एरो, ये दूसरा एरो, ये तीसरा एरो बनाइए, जैसे सैलस मेथड पर हमने पढ़ा था ना उस डिटरमिनेंट में, उस तरह का। 3 into 1 3, 5 into 4 20, 2 into 2 that will give you 4, तो sum will be equals to 27। अब इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये और ये कितना हुआ 8, ये हुआ 6 और ये हुआ 5, इसका सम के 8, 14, 19, ठीक है, आ जाता है कितना 19। तो एरिया विल बी 1/2 मॉडुलस ऑफ लेफ्ट माइनस राइट, ठीक है। तो 19 माइनस 27 का मॉड ये आ जाएगा। तो 27 में तो बचेगा कितना 8, 8/2, तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 4। द राइट आंसर फॉर दिस ट्राइंगल इज 4। आप उससे भी निकाल के देखिए इससे ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये मॉडुलस का ध्यान हमेशा रखिएगा, मॉडुलस शुड ऑलवेज बी देयर।
ठीक है, इस तरह से आप इसे निकाल सकते थे। या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का और भी मतलब डिटरमिनेंट के थ्रू भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। दूसरा तरीका है डिटरमिनेंट्स वाला फॉर्म। ठीक है, तो बाय डिटरमिनेंट व्हाट वी विल डू, जो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे ना x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का 1/2 का मॉड। अब ये उसी को लिखने का दूसरा तरीका जो आपको एक्सपेंड करके आपने रट्टा मारा था 10th क्लास में, अब इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ऐसे लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा जरा देखो, 2 1 1, ठीक है, 3 4 1 और 5 2 1, ये बना। 3 1 दिख रहे हैं तो 2 को 0 कर देते हैं। कैसे, वी लेट्स डू द ऑपरेशन दैट R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। ये ऑपरेशंस करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 3 माइनस ये 2 1 1 तो एज इट इज रहेगा, तो 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1 3, ये 0, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0। तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ओपन करते हैं, ये थर्ड कॉलम के अलॉन्ग ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो प्लस रहेगा 1 इंटू 1 माइनस 9 का मॉड, ये हो जाएगा। तो देख रहे हो 8/2 दैट इज गिवन इक्वल्स टू व्हाट 4। तो 4 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया, ये आपके ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो here is the question for you. Let there be 3 points A, B and C. 3,1, 5,2, alpha, 4. If this triangle area of the triangle ABC, area of triangle ABC is equals to 5 square units, then you have to find the value of alpha. Alpha की वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है। देखिए अब हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, सिंपल सा मैं इसे क्या करूंगा कि मैं डिटरमिनेंट से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, डिटरमिनेंट से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 मॉड्यूलस ऑफ, ये हो जाएगा 3 1 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 2 1 और ये हो जाएगा आपका अल्फा 4 1। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट है तो यहाँ पे ऑपरेशन में कर देते हैं, यहाँ ये इक्वल्स टू क्या दे रखा 5। तो लेट्स डू द ऑपरेशन दैट R3 tends to R3 minus R1, R2 tends to R2 minus R1, तो इससे डिटरमिनेंट हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ 3 1 1, 5 में 3 का तो 2 1 0, अल्फा माइनस 3 3 0, ये हो गया। दैट विल बी इक्वल्स टू 10, इसका मॉडुलस जो आएगा वो 10, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ओपन करेंगे तो 1 टाइम्स 6 माइनस अल्फा प्लस 3 का मॉड, ये कितना आएगा 10। तो दिस विल गिव यू 9 माइनस अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 10। तो अल्फा की वैल्यू -1 और अल्फा की वैल्यू 19, दीज आर द 2 वैल्यूज ऑफ अल्फा। ठीक है, तो कई हम मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ पे मॉड नहीं देखते। ठीक है, तो मॉड जरूर देखिए, तो इससे कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट ऑफ कोनिटी इफ द 3 पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, कंडीशन समझिएगा, इफ द 3 पॉइंट्स आर गिवन A, B एंड C, देयर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज x1 y1 and x2 y2 and x3 y3. You want to check whether the 3 points are collinear or not. Then how we can do. ठीक है, ऐसे करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आप चाहो तो आप इसे डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला व्हाट वी विल डू कि हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। कौन कौन सी, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। ठीक है, कि फाइंड द 3 साइड्स इफ sum of smaller 2 is equal to the third, then 3 points are collinear। जैसे इस डायग्राम अगर कोलिनियर है तो देख रहे हो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आना चाहिए, सी ए के बराबर आना चाहिए।
तो दो छोटी साइड्स का सम अगर तीसरी साइड के बराबर आ जाए तो हम तीनों पॉइंट्स को क्या बोल सकते हैं, द 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। ओके, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेकेंड मेथड इज सेक्शन फॉर्मूला। आप इसे सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला में क्या करना है, आप मान लीजिए लैम्डा S/1 का रेशियो है, एज्यूम दैट द रेशियो इज लैम्डा S/1, therefore the point B x2 y2 should be equivalent to the section formula that lambda x3 plus x1 upon lambda plus 1 and lambda y3 plus y1 upon lambda plus 1। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो आगे बाद दो इक्वेशन जनरेट हो जाती है, x2 इज इक्वल टू लैम्डा x3 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 and y2 is equals to lambda y3 plus y1 upon lambda plus 1। ठीक है, तो सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम बोथ द इक्वेशन। तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है और यहां से वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, तो इफ वी गेट सेम वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम बोथ इक्वेशन देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। लॉजिक क्या है कि कोई पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट्स को सेम रेशियो में तभी डिवाइड करेगा जब उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई करेगा, तो वो रेशियो दोनों जगह से सेम आएगा, तो मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। दिस इज द मेथड नंबर 2 टू चेक द कोलिनिटी। ठीक है, और तीसरा तरीका जो सबसे ज्यादा फेमस रहता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा फेमस रहने वाला तरीका है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इफ 3 पॉइंट्स फॉर्म्स ए ट्राइंगल then the are collinear. If the 3 points are collinear, then the area of triangle formed should be equals to 0। अगर area of triangle ABC equals to 0 है, तो this says that A, B and C are collinear। तो ABC क्या है, collinear है। ठीक है, तो ये आपके पास जो 3 बेसिक तरीके रहते हैं। अगर 3 पॉइंट्स की क्वालिटी चेक करनी है, 3 से ज्यादा पॉइंट्स की क्वालिटी रहेंगी, तो फिर हम लोग उसमें आगे पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन यूज कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन को जो जो पॉइंट सेटिस्फाई कर, दो को ज्वाइन करने वाली लाइन 3 से ज्यादा पॉइंट है तो हम के लिए 2 पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, फिर सेटिस्फाई करके देखेंगे, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हमने जितना पढ़ा उसके हिसाब से हमारे पास 3 तरीके हैं, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल और कौन सा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे चेक करके बताओ कि 3,1 और 2,5 और 4, अल्फा, ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो मान लो अगर ये कोलिनियर है तो इन दोनों को ये पॉइंट लैम्डा S/1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर व्हाट यू कैन से दैट 2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, दिस शुड बी इक्वल्स टू, दिस शुड बी 4 एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू अल्फा। अगर इसे मैं 4 करता हूं तो 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस 4, तो 2 लैम्डा इक्वल्स टू -1, तो लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ गई। तो अगर ये दोनों सेम है तो लैम्डा की वैल्यू दोनों जगह सेम आनी चाहिए, कोई नहीं है तो रख दो यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, -5/2 + 1। ठीक है, ये आपका अल्फा होना चाहिए था, -5/2 + 1 -1/2 + 1, तो ये हो जाएगा ऊपर कितना, -3/2 होल डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, तो टोटल हो जाएगा -3। ठीक है, जाएगा, एंड दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल से करना चाहते हो तो 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 करो, कैसे करोगे, 3 1 2 5 4 7 और जहाँ से स्टार्ट करो वहाँ पे एंड करो। तो ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 20, ये क्या हुआ 3 अल्फा।
ये क्या हो गया 15, ये हो गया 2 अल्फा, ये हो गया 4, तो 19 प्लस 2 अल्फा, यहाँ का सम 22 प्लस 3 25, ठीक है। इसके 1/2 का मॉड, ये कितना हो जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो मतलब 19 प्लस 2 अल्फा माइनस 25, तो 2 अल्फा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आएगी, -3 आएगी। ओके, तो ये मैं इसको दोबारा मिटा के लिख देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा समझ आ जाए। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बनेगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 मॉडुलस ऑफ, इनका सम कितना आ रहा है 419 प्लस 2 अल्फा माइनस इसका सम कितना आ जाएगा 22 प्लस 3 अल्फा का मॉड। दिस शुड बी एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आना चाहिए। तो मॉड ऑफ ये कितना आ रहा है माइनस अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, -3। एंड आइदर वे यू आर गेटिंग अल्फा इक्वल्स टू -3, ठीक है। समझा है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ट्राइंगल की अगर बात आती है, ठीक है, ट्राइंगल, तो अगर कोई ट्राइंगल आपको दे रखा है ABC, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के क्या क्या टेस्ट होंगे, ठीक है। अगर ट्राइंगल दे रखा है तो सबसे पहले जरूर चेक कर लीजिएगा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर कभी आपको ये चेक करना है कि ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैसे चेक करोगे, कोलिनियर, तो क्योंकि ट्राइंगल तभी फॉर्म नहीं होगा जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। 3 अलग अलग पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, लेकिन 3 अलग अलग पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो एक ट्राइंगल जरूर फॉर्म होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 करके चेक कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला से चेक कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक कर सकते हो कि 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। तो अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ABC दे रखे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है कि AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA। अगर ये हो जाए तो क्या हो जाता है, AB का तो ट्राइंगल इक्विलेटरल आ जाएगा। इसके लिए क्या यूज़ करना होगा, इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा आपको डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इसके अलावा अगर एनी 2 साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल्स टू BC, ठीक है, तो आपका ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर AB इज नॉट इक्वल्स टू BC इज नॉट इक्वल्स टू CA, तो कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगा। अब ध्यान देना कि यहीं पे सबसे ज़्यादा गेम होता है क्वेश्चंस में, ठीक है, कि अगर हम लोग जब 3 साइड्स निकालते हैं तो देखो तीनों साइड अनइक्वल है, बोल देते हैं स्केलिन ट्राइंगल। लेकिन वहाँ पे जरूर चेक करना कि क्या 2 छोटी साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर है क्या। तो उसमें होता क्या कि ट्राइंगल कोलिनियर होते हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते और बोल देते हैं स्केलिन ट्राइंगल, आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। इसके अलावा ट्राइंगल की पार्टीशंस और क्या क्या हो सकते हैं, ट्राइंगल के पार्टीशन तो राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल वाइज करें तो राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा साइड होगा, ठीक है, मान लीजिए AC, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 2 छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के बराबर आएगा। तो अगर ऐसा होगा तो ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल, ठीक है। फिर एक आपका होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल कब होगा, जब 2 छोटी साइड का सम ऑफ द 2 स्मॉलर साइड्स, लेट्स से BC एंड AB आर द स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। मतलब हम लोग मान लेते हैं कि AC इज ग्रेटर देन BC एंड AB, ठीक है। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर शुड बी लेस देन AC स्क्वायर। मतलब 2 छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर से क्या होना चाहिए, छोटा, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। और एक ट्राइंगल में कितने ऑब्ट्यूज एंगल बन सकते हैं, सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल बन सकता है। एंड द लार्जेस्ट एंगल विल बी अपोजिट टू द व्हाट, लार्जेस्ट साइड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ट्राइंगल के पहचानने के केस में जब आता है इस तरह से आ जाएगा। दूसरा आता है लेंथ ऑफ मीडियन निकालना पड़े कभी। लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकाल, मीडियन इज व्हाट, मीडियन इज द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, ठीक है। अगर आपको मीडियन निकालना है
तो मीडियन निकालना तो पहला क्या हो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डी निकालो। डी क्या होगा, डी कैसा है, मिड पॉइंट। और फिर दूसरे स्टेप में क्या निकाल दो, एडी निकाल दो। ठीक है, कि डी की वैल्यू क्या आएगी, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अगर बी और सी पता है तो आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो। मिड पॉइंट आ जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, एडी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आइए। तो दिस इज मेथड टू फाइंड द मीडियन। अगर आपसे कभी एंगल बाइसेक्टर निकालने को बोला जाए कि एंगल बाइसेक्टर का लेंथ बोलो, मतलब अगर ऐसा होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है तो एंगल बाइसेक्टर का लेंथ क्या निकालो, कैसे निकालेंगे। तो अगर आपके तीनों वर्टेक्स दे रखें तो ये वाला लेंथ निकालो। इस वाले लेंथ को मैं स्मॉल सी बोल देता हूँ, बी का अपोजिट स्मॉल बी बोल देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इसे C/B के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट आपका x2 y2 है और ये पॉइंट आपका x3 y3 है तो आप d निकाल लीजिए। d कितना आ जाएगा, c टाइम्स x3 प्लस b टाइम्स x2 अपॉन c प्लस b। ठीक है, c टाइम्स y3 प्लस c टाइम्स b टाइम्स y2 होल डिवाइड बाय c प्लस b, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग ये लेंथ निकाल लीजिए ए बी और ए सी, और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्या निकाल लीजिए, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जब डी आ जाए तो ए डी लेंथ निकाल दीजिए, ये तो आपको पता ही है। तो अगर तीनों वर्टाइसेस आपको पता है कि क्या होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे तीनों वर्टाइसेस अगर आपको पता है तो आप क्या निकाल लीजिए, दो साइड्स निकाल, जो भी एंगल बाइसेक्टर है उसके दो एडजेसेंट साइड का लेंथ निकाल लीजिए। और वो निकालने के बाद आप यूज करिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, देन फाइंड द लेंथ एडी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। ये ट्राइंगल को रिलेटेड चीजें जो रहेंगी वो इस डाटा पे डिपेंडेंट रहेंगी। ठीक है, इसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहली चीज ये पहचानना कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम है या नहीं, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट विल बी। ठीक है, व्हाट टाइप क्वाड्रिलेटरल इट विल बी। तो सबसे पहले समझिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी, तो और भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ट्रेपेजियम्स होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ऐसे बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो उनके क्लासिफिकेशन, काइट होते हैं, तो उनके क्लासीफाई कैसे करें, हाउ टू क्लासीफाई। तो नॉर्मली हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स की ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी अराउंड दैट। तो अब देखिएगा कि अगर आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि कोई भी गिवन क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो हाउ यू विल डू दैट, फॉर दैट सिंपली मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। मतलब बीडी और एसी का ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन होगा वो दोनों का मिड पॉइंट होगा, किसका, एसी का और बीडी का। ठीक है, तो जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है दैट विल ऑलवेज बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो every quadrilateral in which the diagonal bisect each other will be called as a parallelogram। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको ऐसे दे दिया जाए कि जैसे कि कोई क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स दे दिए, बोला जाए कि पहचानो कि पैरेललोग्राम है या नहीं, तो बीडी का मिड पॉइंट निकालो और एसी का मिड पॉइंट निकालो और चेक कर लो कि कौन सा है कौन सा नहीं। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर जो आपके पास एश्योर हो जाए कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में भी 3-4 प्रजातियां होती हैं। एक हो गया आपका प्योर पैरेललोग्राम। ठीक है, कि पैरेललोग्राम बिल्कुल प्योर पैरेललोग्राम है। एक हो गया आपका स्क्वायर, वो भी पैरेललोग्राम है। फिर एक हो गया आपका रेक्टेंगल। War is a 2019 film directed। ठीक है, और इसके अलावा फिर एक होता है रोम्बस।
ये 4 तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो देखो यहां पे इनको पहचानने के लिए चारों वर्टाइसेस आपको पता है, तो डायगोनल तो एक दूसरे को सब जगह बाइसेक्ट करेंगे। इन सब में डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग चेक करते हैं इक्वल डायगोनल्स। इक्वल डायगोनल पैरेललोग्राम में, प्योर पैरेललोग्राम में नहीं होता, स्क्वायर में होता है, रोम्बस में होता है, लेकिन इसमें नहीं होता, ठीक है। तो इक्वल डायगोनल्स चेक कर लो। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है एडजेसेंट साइड इक्वल। अब एडजेसेंट साइड इक्वल हो ये कैसे निकाला जाए कि भाई आप ये वाला लेंथ निकालो, ये वाला लेंथ निकालो। तो एडजेसेंट साइड इक्वल किस में आएंगी, वो स्क्वायर में आएंगी, ठीक है। एडजेसेंट साइड इक्वल किस में आएंगी, स्क्वायर में आएंगी या रोम्बस में आएंगी, ठीक है। प्योर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं आएंगी। और डायगोनल्स इक्वल, और इसके अलावा और कौन सा तरीका हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इक्वल डायगोनल्स के स्क्वायर और रेक्टेंगल में आएगा, रोम्बस में नहीं आएगा। रोम्बस में डायगोनल्स क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। रोम्बस में डायगोनल क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो देख रहे हो कि आपके ये 3 टेस्ट करने के बाद ये टिक और क्रॉस का कहीं पे भी आपका कंपोजिशन सेम नहीं है, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट, ठीक है। सबके सब कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कि आपको कभी कोई क्वाड्रेटिक मिले तो आपको ये 3 टेस्ट करने हैं। 3 टेस्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं, और एडजेसेंट साइड इक्वल है या नहीं। अगर एडजेसेंट साइड इक्वल है तो या तो अब क्या बनेगा, या तो स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और एडजेसेंट साइड इक्वल है तो रोम्बस या स्क्वायर बनेगा, और डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो सिर्फ क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, बाकी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे चेकआउट कर सकते हैं। क्या क्लियर है सबको, ठीक है। पहले पार्ट का जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 8√3। कैसे करा, बस सिंपल देखो, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा, t1 माइनस t2 निकल गया, अंदर ये बचा। t1 प्लस t2 की वैल्यू यहाँ से दिख रहा है, सम ऑफ रूट्स 2√3, और t1 माइनस t2 इज डिफरेंस ऑफ रूट, तो 1 रूट इज √3 माइनस 1, अदर रूट इज माइनस √3 माइनस 1। तो बस दोनों का सम जो आएगा वो कितना, दोनों को अगर हम एडअप कर देते हैं, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी, दिस विल बी प्लस माइनस 1 और ये 1, ठीक है। तो सम जो आएगा वो 2√3 आएगा, ठीक है। सम जो आएगा 2√3 आएगा, और डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस विल बी ओनली 2। डिफरेंस जो आएगा वो सिर्फ 2 आएगा। तो आप आंसर निकाल लीजिए यहाँ पे, तो ये आएगा 2 और ये हो जाएगा 4, तो आंसर विल बी 8, ठीक है। क्लियर सबको। सेकंड वाले में क्या करना है, a cos थीटा से a cos फाई a sin फाई दे रखा था, बस सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला तो आपका आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आंसर जो आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a साइन ऑफ थीटा माइनस 5/2। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, 3 पॉइंट दे रखे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, तो 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, और -4 - 2 - 2 ये हो जाएगा आपका 2√2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, कितना आ रहा है 3, तो ये आ रहा है 3√2, ठीक है। ये आपका कौन सा लेंथ हो गया PQ, ये वाला कौन सा लेंथ हो गया QR। अब तीसरा डिस्टेंस निकालो तो ये 7 से ये हो रहा है 5√2। कौन सा लेंथ आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू PR, तो विच इज द लार्जेस्ट लेंथ PR। लेकिन जरा देखो कि यहाँ पे 2√2 प्लस 3√2 इज इक्वल्स टू 5√2 आ रहा है, तो दो छोटी साइड का सम तीसरी साइड के बराबर है, तो हेंस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर D आएगा, ठीक है। चौथा आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
थर्ड वाला, आपको लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है। लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकाला जाए? लेंथ ऑफ मीडियन के लिए क्या बताया था, क्या निकालना है? लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम सी टू ए बी, सी से ए बी पे लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है। तो कैसे आएगा? इस तरह से, ये ए बी और सी, तो सी से ए बी, तो मुझे ए बी का मिड पॉइंट चाहिए। तो ए कितना था? -4, -3। बी कितना था? 6, -1। सी की वैल्यू कितनी है? 2, 5। तो मिड पॉइंट निकालते हैं, तो कितना आ रहा है? 1, -2। इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकाला? -4 + 6/2, -1 -3/2। तो ये आपका 1 आएगा और ये कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट 1, -2 आ गया। अब मीडियन जो होगा वो ये लेंथ होगा, तो 2, 5 का डिस्टेंस 1, -2 से कितना हो जाएगा? 1 + 49 √, दैट विल बी इक्वल टू 5√2। ठीक है, तो 5√2 इज द लेंथ। 5√2 में अगर 5 को अंदर ले जाओगे तो √50 बन जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो थर्ड का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चेक करते हैं। तो लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज 10, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एक्सट्रीमिटी इज 2, -3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक सेगमेंट है ए बी, उसका लेंथ है 10, एक एक्सट्रीमिटी जो है वो 2, -3 है। तो एब्सिस ऑफ द अदर एक्सट्रीमिटी इज व्हाट? 10। एब्सिस का इज 10, तो सम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो ओके, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? y बोल देते हैं। तो डिस्टेंस निकालते हैं, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 100। ये 8 का 64, तो y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो y + 3 की वैल्यू या तो 6 या -6, तो y की वैल्यू या तो 3 आएगी या -9 आएगी। तो दोनों को, यहाँ पे y की दो ही पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, 3 और -9, तो 3 + -9 that will give you -6. So sum of the numbers will be -6. Hence option number D is the right answer. Clear है? ओके, तो ये आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, ये अभी तक हमने जितनी बात करी है उस पर बेस्ड पूरी की पूरी चीज़ें हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और एक मैच द कॉलम है, ये 5th नंबर का मैच द कॉलम। 5 क्वेश्चन है टोटल जो आपको करने हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करके आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 आपको देख ही रहा है, और ये वाला पार्ट मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो ये आप लोग सॉल्व करके लेके आए नेक्स्ट पार्ट में, तो हम लोग उसमें आगे बात करेंगे। ओके, so that's all for today.